नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही खास जगह जाने वाले हैं जिसको जंगल टेम्पल भी कहा जाता है और कंबोडियन लैंग्वेज में कहते हैं बांग मेले। ये जगह लिटरली टेम्पल रन गेम जैसी दिखती है। आइए चलते हैं। कैन यू टेल मी सम कंबोडियन कॉमनली यूज्ड वर्ड्स like greeting words or normally like welcome, can I go? Okay, that is a good question. Yeah. And like if I have to ask, Yes. like those Cambodian Yes. local language words. Yeah. Okay. Can you Okay. tell me some? So the first greeting, yeah, we always put the hand together. We call sampea. Sampea. Yeah, sampea. Sampea. Yeah, and then we say chumrep su. Chumrep sua. Yeah, this is for friendly. Yeah, and under the chin, we respect elder than us. Okay. Yes, and then the third, yeah, under the nose for our parent, grandparent. Yeah. And under the forehead, for monk, we respect the monk, the king, yeah, and the god. A god. Here, yeah, So different levels for yeah. different. So 5 step. This for friendly. Chumrep sua, yes, yeah. Chumrep sua, elder, parent. Chumrep sua, yeah. And this is a king and monk, yeah, yeah. And the god, like this, yeah, Okay. yeah. Jumrep And- sua. If you be home late, yeah, you like this Okay. to your wife. And then what do we say? Your wife, yeah. So no next time, no next time. Just funny, yeah. Okay, but yeah. that is our culture. Okay. When the husband they be home late, they always do like this. Yeah. Please open the window for me. Okay. Open the window. Nonetheless, Open the wife door will- for me. We have the word like English. Huh. Good morning, good afternoon. Huh. But the word Tuesday, Suasdai. yeah, you can say anytime. Okay. Okay. Tuesday, yeah, Tuesday. Yes. Thank you. We say Akun. This Akun. one, Akun. Yes. Cambodian sides of Khmer rogue brutality added to Meru, UNESCO Meru, heritage Meru. sites. Yeah. Especially when we make a mistake, we say sorry. We like to put hand together and say sorry, sorry. Somto, Samto. somto, somto. Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah, somto. Yeah, and no, thank you. Sometimes we teach our guests to say "akun," thank you, and "no, thank you." Okay. Te akun, te. Te akun, no thank you. No, thank you. Walk through the market. When they start to sell the thing to our guests, and if our guests they don't like it, they can say te akun. That means I have to use a lot of te akun everywhere. Te akun. Everyone is trying to sell me like, something. no, thank you. It means like respect. Yeah, te akun. But you will Yeah. need na, otherwise you have to pay. Someone will sell you something. Yeah, I'll say te akun. they are good. for regime, so people they work so hard, and then they don't have any food. That's why they eat anything. When they Okay. see like frog, yeah, because we have many species of the frog, yeah, and then they try to cook and then eat it. Yeah. Sometimes they see crab, Crab. they can eat. Water snail, yeah, small I shrimp, have tried those. yeah. Not snail, the one which opens. We It call was small- tasty. It was tasty. Yeah, I know that. We call lees. That one Lees, lees, yeah. But like the small snail, yeah. And they cook under the sun normally, yeah. And You- they put the salt, chili, onion, yes. Yeah. So and then they dry in the sun about a couple of hours, then it cook. तो चलिए हम और आप मिलके घूमते हैं बांग मेले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरा जो गाइड है उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो यहाँ से मैं टेक ओवर करूँगा। तो बांग मेले का अर्थ होता है लोटस पॉन्ड। ये टेम्पल जो है, ये मंदिर जो है, ये 12वीं सदी में बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन II के शासनकाल के दौरान। तो किंग सूर्यवर्मन ने अपने शासनकाल में कई मंदिर बनाए हैं और कई रिनाउंड मंदिर बनाए हैं, जिनमें से बांग मेले भी एक है। इसका डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है अंकोर वट टेम्पल से, क्योंकि राजा सेम है ऑब्वियसली।
सेम लेआउट, सेम वही मोट वाला गैलरी, लेकिन ज़्यादा खो चुका है, ये जंगल में खो चुका है। इस पे सिविल वॉर की काफ़ी डैमेज है। अभी जो ये आप देख रहे हैं ये है शेषनाग। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये नॉर्मली जो आप स्ट्रीट से उसका जो साइड का जो रेलिंग होता है उनको शेषनाग से डिपिक्शन किया गया। ये ऑलमोस्ट सूर्यवर्मन 2 द्वारा बनाई सारी मंदिरों में आपको सेम दिखेगा। और इसमें जो नाग है ये, जैसे कि मैंने पूछा भी था कि ये थोड़ा सा ड्रैगन जैसा क्यों दिखता है, तो वो भी इसलिए है क्योंकि उस लोकेशन में ड्रैगन वाला हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है। चाइना, म्यांमार वगैरह, थाईलैंड, यहाँ पे ड्रैगन का हिसाब किताब ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली कंबोडिया का जो शिल्प कला है उसमें भी उसका प्रभाव दिखेगा। ये जो टेम्पल था ये एक क्रॉस रोड पे, एक बिजनेस क्रॉस रोड पे पड़ता था। तो इसका सिग्निफिकेंस 12वीं-13वीं सदी में बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ रूट्स मिला करते थे, जस्ट लाइक आवर नागपुर इन इंडिया। जंगल और नेचर ने इस पर हाथ जोड़ लिया है पूरा। रूट्स, वाइन्स, कोलैप्सिंग स्टोन्स, सब कुछ है यहाँ पे। और ये मंदिर बेसिकली एक तो वॉर की वजह से टूट के गिरा है और बाकी जो कसर रह गई थी वो जंगल, झाड़ और पेड़ों ने कर दिया है। तो पीपल यूज्ड टू स्टे आल्सो व्हेन इट वाज मेड। वेल, इस लोकेशन को सियाम रीप से अगर आप जा रहे हैं तो 60 से 70 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। अराउंड 1.5 घंटे की प्राइवेट टैक्सी जो भी आप बुक करोगे घूमने के लिए वो उससे लगेगी। इसकी एंट्री फ़ीस अलग नहीं होती है आज के डेट पे। जो मेन जो आप टिकट खरीदते हो गवर्नमेंट आउटलेट से, उसमें ये इसका एंट्री पास भी इंक्लूडेड रहता है। इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो है अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून, क्योंकि ये जंगल के बीच है, मतलब जंगल का पार्ट बन चुकी है। तो ये जो टाइम है ये इस जगह पे जाने में मतलब फील गुड अच्छा होता है। जितना अंधेरा होता रहेगा उतना बेकार सा लगेगा। अच्छा, यहाँ जाने के लिए कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़, कुछ भी कंफर्टेबल सा पहन लीजिएगा, स्पोर्ट्स शू पहन लीजिएगा, अपनी पानी की बोतल खुद कैरी कीजिएगा, टोपी, सन हैट, इंसेक्ट रेपेलेंट वगैरह वो ले लीजिएगा। लड़कियाँ स्कार्फ या शॉल ले सकती है, शॉल वैसे गर्म हो जाएगा, कुछ भी स्कार्फ जैसा। कैमरा, गुड बैटरी और मे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड अगर आपको इस तरह की जगह एक्सप्लोर और रिकॉर्ड करना पसंद है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ। वेल, जस्ट टू कंफर्म, ये भी विष्णु टेम्पल ही है। वैसे इसका 2 पार्ट है, एक है विष्णु जी को और एक और अपर लेयर टियर है जो कि शिव जी को समर्पित है। यहाँ पे क्योंकि ये एक ट्रेड क्रॉस सेक्शन भी हुआ करता था, तो यहाँ पे उतना कुछ आपका जो इस डायनेस्टी में जो एक हिंदू से ये बुद्धिज़्म, फिर बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म का जो मूवमेंट हुआ था, इस जगह को अफेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये एक ट्रेड मिड पॉइंट भी था। मंदिर कम ट्रेड मिड पॉइंट कम आपका रेस्ट करने की जगह, क्योंकि उस वक्त तो सब पैदल या घोड़े या गधे लेके ही चलते थे। तो इस जगह की जो आस्था थी वो हिंदू आस्था ही रही है। इस पे कुछ बुद्धिज़्म या किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा है, जो कि अंकोर वट और दूसरे सिटी के बीच वाले मंदिरों में पड़ा है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है इस जगह का, क्योंकि ये मोर और लेस एक ट्रेड इंटरसेक्शन था, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेम्पल। The design here, okay, just as a joke, there is a mobile game we used to play. There's a mobile game. Opens up. That's There was a mobile game we used to play on, which was called Temple Run, and it had something like this. Okay, a man will start running, and a monster is chasing him, and rest of the temple is broken. This thing looks like that. तो जैसा कि आपने मुझे बोलते हुए सुना, एग्जैक्टली इस जगह की वाइब बिल्कुल टेम्पल रन गेम जैसी ही है। मतलब वैसे ही टूटा मंदिर, वहाँ दौड़ने जैसा। अगर ये जगह खाली होती तो ये जो लकड़ी का जो पुल जैसा सेक्शन बना है विजिटर्स के लिए या एक्सप्लोरर्स के लिए, ये ऐसा नहीं लगता है कि वो टेम्पल रन का आप एक कैरेक्टर है और आप वहाँ पे दौड़ रहे हैं और पीछे से मॉन्स्टर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली एक रियल लाइफ टेम्पल रन गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। जावेद जाफरी जी को अगर इसके बारे में बताया जाए तो टकेशीज़ कैसल के बाद
ये टेम्पल रन कैसल बना सकते हैं, कहिए कमेंट सेक्शन में, पॉसिबल है या नहीं। Okay. Yeah, this is fine. Some you can see कवर्ड बिल्डिंग। कनेक्शन कॉरिडोर। This is 9 DT. So you know this story very well. It's the 9 DT. That side the same on the right side. That is part of Ramayana. 9 planets, planet DT, okay, that is part of Ramayana. So it's fighting between Ram and Ravan. what is that dragon like design? That is the it's like the frame that decorated by Naga, by snake. Yeah. वेल यहाँ पे आप जब भी गाइड करेंगे तो मोस्टली 99% ऑफ द गाइड्स यहाँ पे बुद्धिस्ट होते हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं है हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू टेम्पल्स कौन सा डिज़ाइन किस लिए है, तो वो नागा समझेंगे और आपका दूसरा जो है अप्सरा डांसर वाला हिसाब समझेंगे, और बाकी वो पूरा कंफ्यूज रहते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें मेरे गाइड ने भी अगड़म बगड़म चिपका दी थी मुझे, जो मुझे समझ में आ रही थी कि कुछ और है, लेकिन वो मुझे बताया जा रहा था क्योंकि उनमें वो उतनी अवेयरनेस है नहीं। ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है एज अ गाइड, टूरिस्ट गाइड, और थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ उनको मार्केट में छोड़ दिया गया है। ज़्यादातर फॉरेनर टूरिस्ट ही आते हैं जिनको भी अगेन हिंदू की हिस्ट्री के बारे में, उन हमारे मंदिरों के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में उतना अच्छा नहीं पता होता कंपेयर टू हमें। तो ये एक अजीब सा डाइसी सिचुएशन रहेगा जब भी वो कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ अजीब सा बताएंगे। उसमें एक नागा और 4-5 जो उनका रटा रटाया भगवान है हमारे बारे में, वो चिपका देंगे और एक बढ़िया सा सेंटेंस बना के छोड़ देंगे। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये हिंदू मंदिर ही है, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर। तो उसमें जो जो आर्टिफैक्ट्स नॉर्मली हमारे मंदिरों में दिखते हैं वो सब दिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा वहाँ पे आपको ड्रैगन और चाइनीज़ और बाकी लोकेशंस का इन्फ्लुएंस मिलेगा, क्योंकि वो लोग उस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे नहीं, तो एक लोकेशन इन्फ्लुएंस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरी तरह से हिंदू मंदिर है, हमारे अपने जो बिलीव्स हैं, हिंदू बिलीव्स के हिसाब से बनाए गए हैं। So now we go in the corridor. Yes, corridor. There's no light arrangement in the corridor. No light arrangement. अरे तो এই মশাল লাগিয়ে দিত, ওল্ড স্টাইল মশাল, দারুণ হতো। So we have to walk like this. On that. We have to step on the wood. Okay. One step. So we are also playing mini games. Temple run. Temple Run. Yeah, the theme is also Temple Run. This is we injected the poison. Nice that. Okay. Yeah, look like Krishna. They should cut it immediately already. First they are injecting poison to kill it. After that they are cutting it from places where it can be cut. तो जैसा कि आपने देखा, पूरा मंदिर जंगल, पेड़ और ऐसी वाइन्स जो कि जानी जाती है
ह्यूमन बनाई स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा मतलब फॉरेस्ट ने टेक ओवर कर लिया है, जंगल ने टेक ओवर कर लिया है। तो गवर्नमेंट और जो यूनेस्को है उसने ज़्यादातर वाइन्स तो काट दी हैं, साफ़ की हैं, और कई ऐसे जगह हैं जो दीवार के आर पार या दीवार के साथ पार्ट हो गई है। तो उन वाइन्स को क्या किया है इन्होंने, जहर के इंजेक्शन दे दे के मार दिए है और वैसे दीवार पे छोड़ दिया है एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब है राउंड 2 एक और कन्फ्यूजन का, जो लोकल कंफ्यूज है एक चीज़ के बारे में। Stone? Stone coffin? Yeah, that one. Yes, Okay. that one. वेल यहाँ पे आप देखेंगे मेरे गाइड ने एक ट्रायंगुलर शेप पत्थर के शेप को कॉफिन का है। ये कॉफिन नहीं है, ये नंदी भगवान जो रहते हैं उनके नीचे का जो पेडेस्टल है वो है, जो कि हिंदू मंदिरों में शिव जी के गढ़ के बाहर या मंदिर के बाहर रहता है। वो किसी वजह से टूट के गिरा है और ये उसको कॉफिन समझ रहे हैं। Supreme rich. Yeah, when they pass away, they put in the coffin. Couple year or several year, they tear open and cremate it. Okay. Our record say for the head of the community, the head of the stone cutter. So when had passed away, they bury in the Coffin. tomb, the coffin. So only one is there? Like, Before only one, the big one. okay. Yeah. और अब वक्त आ गया है एक्चुअल टेम्पल रन खेलने का या एक्सपीरियंस करने का, जो कि हम मोबाइल फ़ोन पे खेलते थे, अब रियल लाइफ पे खेलने का एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। Take a picture now. Please, please. Please, one. Wait! Stay. Okay. No. Done. तुम्हारा लग है? No. You can have one. I'm going to take. Temple run! Monster is coming! Okay, at first they had a wooden bridge and then the water engulfed the bridge, so now there are wooden stumps. Oh. और इसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ती रहेगी, एग्जैक्टली लाइक द गेम। This was how much kilometer area? The moat, we start from the moat. From Moat starting. Moat, 1,000 meter, 1,000 200 meter, 1000 by 1000. 200. Yeah. Almost square. Almost square. Yeah, rectangle. So this much was base, right? 100 and This much was base, and Yeah. from there the door used to start. yeah. Okay. That is the image is Apsara. Uh-huh. You can see it's Angkor Wat style. Yes. So we move to the south. We see it's good condition there, and with the fig tree are still growing on the top. Hmm. The 3DT. Okay. 3DT. 3DT. And with incense sticks. Cobra Huh. and Vishnu. Vishnu. That is a Ganesh. No. Nana Vishnu. Okay. The west, the south, and the north is a small entrance. But the main entrance, the east, because the temple face the east. Yeah. So this was all. ये जिस राजा का था ये एक्चुअली अंकोर वाट डिज़ाइन पे है, लेकिन इसको ठीक से रखा नहीं जाता है। इसको ठीक से रखा नहीं जाता है, तो जैसे भी है ऑलमोस्ट नेचर ने इनगल्फ कर लिया है। हाँ, ओके।
एनगल्फ कर लिया है। भी जावे Restroom. वो तो रूम Samit, where is the restroom? I know. I will go. In Kokar restroom is there? ओके, देयर आर नो रेस्टरूम्स। तो हाँ, तो ये किंग सूर्य, मैं नाम भूल जाता हूँ, द सेकंड ने बनाया था, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंडोस। लेकिन ये इसको हाँ कनेक्शन नहीं रखा। हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एक चीज़ बोलना था, वो है कि यहाँ पे जो कंट्री साइड में जैसे वो घर देख रहे हो, ये लकड़ी के बने होते हैं, ओके, वुडन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा है। सी एक और देखो, ये घर भी देख लो आप, हाँ देख रहे हो। ऑल दिस कंट्री हाउसेज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे जो लोकल, ये लोग मोहगनी बोलते हैं, मोहगनी है नहीं, कोई लोकल वुड है, कंस्ट्रक्शन वुड है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अभी तो काटने पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन किया है, तो उस पर कंट्री साइड का जितना भी घर है वो बनता है। और उसके अलावा यहाँ पे सीमेंट, ईंट, गिट्टी, जो भी कंस्ट्रक्शन आइटम है, दैट्स गोइंग टू वे एक्सपेंसिव। मतलब गरीब हो जाओगे सी वन मोर कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए लाइक थोड़ा सा लोहा, थोड़ा सा टीना, थोड़ा सा इनका ईंट अलग होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सस्ता मटेरियल किस्म का ईंट होता है। वेरेवर दे कैन सेव मनी, दे आर ट्राइंग टू सेव मनी। हाँ, और एक चीज़ जो मुझे जानने को पता चली वो है कि यहाँ पे जितने भी कार्स हैं, मेजॉरिटी लाइक 90% ऑफ द कार्स आर सेकेंड हैंड, थ्रोन आउट कार्स फ्रॉम द वेस्ट। यूरोपियन कार्स, अमेरिकन कार्स, ओके, जर्मन कार्स। तो यहाँ पे लोगों के पास लेक्सस, जी वैगन वगैरह बहुत चीप रेट में आ जाता है, क्योंकि दोज आर थ्रोन आउट कार्स, रन डाउन। तो वो जब वहाँ से स्क्रैप हो जाती है, वो स्क्रैप होके इधर आती है, फिर उसको रीबिल्ड होता है, रीबिल्ड करवा के उसको चमका के, जैसे ये भी जो हम इस वक्त इस गाड़ी में बैठे हैं, दिस इज़ अ Hyundai, कुछ एक ट्रैवलर है जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, नाइस कार। लेकिन दिस इज़ अ थ्रोन आउट रन डाउन कार, ठीक है। इसमें सब है, ये वगैरह, सन शेड वगैरह सब है, 1 2 3 पीछे स्पेशियस है, ओके। सो ऑल दीज आर थ्रोन आउट स्क्रैप व्हीकल्स फ्रॉम द वेस्ट। और इसको फिर ये लोग बनवा के इनको कैम्बोडिया में रजिस्टर करके, कैम्बोडियन रजिस्ट्रेशन करते हैं इनके, और फिर इनको यूज़ किया जाता है बाय द सिटीजन्स ऑफ कैम्बोडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड कार बहुत कम लोगों के पास है जिनके पास अफोर्ड करने का पैसा है, एंड इट्स लाइक दे आर पेइंग 3 times द मनी, ठीक है। टैक्स बहुत है, एज उतना ज़्यादा नहीं, 10% टैक्स तो है सब में, लेकिन रेस्ट्रिक्शन बहुत है, क्योंकि दिस इज़ किंगडम ऑफ कैम्बोडिया। तो वहाँ पे एक सिम्बोलाइज राजा होता है, तो उस पर सिटीजन्स पे बहुत सी वन मोर, वहाँ पे एक और है, हाँ, वुडन हाउस, उस तरह से है। तो अभी पिछला जो हम मंदिर देखे, हाँ, तो ये उसके बाद हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो मैं देखता हूँ ब्लॉग से, ये मैं चाहता था बताना, क्योंकि मेरे को पहले लगा कि शायद यहाँ पे टैक्सेस कम है वगैरह, लेकिन नहीं, यहाँ पे मोस्टली यूज्ड व्हीकल्स आते हैं। यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, टूरिज़्म पे मैक्सिमम डिपेंडेंट है। जैसे कि पिछले सेशन में मेरे टूर गाइड के साथ जो बात हो रहा था, उस पर आपको पता चलेगा कि उसमें आपको पता चलेगा कि ये लोग, एक टाइम ऐसा आया था व्हेन द किंग हिमसेल्फ, किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो भी अवेलेबल हो खा लो,
तो उसमें आपका टैरेंटुला, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, कोबरा स्नेक, फ्रॉग्स, तो एकदम आराम से ये लोग सांप को चिकन बोल रहे हैं, खा लेंगे। सांप तो चिकन जैसे लगता है, वेरी टेस्टी स्नेक सूप। तो ये बस इसी चीज़ का सिंबलाइजेशन है कि इनकी हालत बहुत ख़राब रही है, अभी भी शायद है, एंड दे हैव अडेप्टेड टू दैट। एक पॉइंट पे ऐसा था कि राइस वगैरह जो भी है वो उतना होता नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता था नेबरिंग कंट्रीज़ में। क्यों एक्सपोर्ट करना पड़ता था? ताकि उसके एवज में उनको दूसरे रिसोर्सेज मिले, तो बार्टर सिस्टम पे। तो उसके वजह से भूखमरी फैल गई थी देश में। तो उस भूखमरी से टैकल करने के लिए दे स्टार्टेड ईटिंग ये कीड़े मकोड़े, सांप, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एक्सेट्रा। तो ये धीरे धीरे पता चल रहा है। तो हम लोकल मार्केट वगैरह भी जाएंगे हमारे इस टूर में, जहाँ पे बहुत कुछ कंबोडिया के बारे में अजीबोगरीब हम एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ अजीबोगरीब फॉर अस बट वेरी मच नॉर्मल फॉर देम। तो देखता हूँ क्या कुछ ला सकता हूँ। स्टे ट्यून्ड।